हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 जो है सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी जो चैप्टर है हेजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल्स, यानी चैप्टर जो है थर्ड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से चैप्टर। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू पे। और इसमें हर एक पहलू जो अब तक आपने नहीं जाना है, हम उस पर विचार करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next fifth question is the most important here. What is the mean by the operation Iraqi freedom? That is important. What do you mean by the operation Iraqi freedoms here? And mention its main objective as well as the hidden objective. There is the mention of the objective and hidden objective also. This is the most important question here. Operation Iraqi freedoms here. Operation Iraqi freedom, it was the code name. Operation Iraqi freedom, it is the only name of the code. Advance of the Iraq by the USA. USA given a code of Operation Iraqi freedom. And this operation was launched on 19 March 2003. And more than 40 other countries joined their coordinations of the willings after the unit refused to be give a permission for the invasion. This is important. From Operation Iraq Freedom, there is a name given by the USA. This is a code, and the launching by the 9th March 2003. And the most important things here 40 other countries joined their coalition of billing here. Important. Let's see other main objective and hidden objectives here. The main objective and hidden objectives here, the main as well as the hidden objective of the inventions was to prevent Iraq from developing in the weapon of mass destruction, means WMD, weapon of mass destruction. This is WMD. When no proof of the WMD was found in Iraq, it was speculated that the invention was motivated by the other objectives, which included controlling oil field of Iraq and installing a regime friendly to the United States. This is important. There are main objective and hidden objective here. Hidden objective here, weapons of mass destruction, means WMD, and there is a control in the field of Iraq and install their regimes of friendly to be United States. It's important. And then let's see the consequence of Operation Iraq Freedom. The consequence of the Operation Iraq Freedom, there is the most important here. Its use was not able to the peacefully Iraq even to the government and feel the swiftly a fully fledged operation was originated against the USA by Iraq. The USA had a loss of 3,000 military personnel in the war, and since the USA led to the invasion, it was estimated that as a 50,000 Iraqi civilian has been killed. This is an important consequence here. There is the USA, the fully funded operation was designed to against the
USA by the Iraq, and there is a 3,000 military personnel is war is lost their life, and 50,000 Iraqi civilians they are killed in this war. This is the most important consequence. जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन पाँचवा आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाँचवा क्वेश्चन को अर्थ को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इराक पे जो है अमेरिका ने अटैक किया, ठीक है, तो जनरल सी बात है कुवैत को छुड़ाने के लिए, लेकिन इस ऑपरेशन को जो है क्या नाम दिया गया, तो यहाँ पर इन बातों के ऊपर जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। कहते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से क्या तात्पर्य, आखिर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था और इसके मुख्य उद्देश्य के साथ छिपे हुए कुछ उद्देश्य का उल्लेख करें, यानी जो इसके साथ कौन से उद्देश्य छुपे हुए थे और इन उद्देश्यों का क्या अर्थ था। जनरली बात यहाँ देखें हम तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था क्या एक तरह के वॉर था। जनरली अगर हम यहाँ बात करें तो यह अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण के लिए दिया गया एक कोड नाम था, यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए दिया गया एक कोड था, और यह ऑपरेशन 19 मार्च को लॉन्च किया गया 2003 में, यानी 19 मार्च 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया। और कहते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश जो थे इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम देखा जाए तो एक तरह का एक कोड था, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका उद्देश्य क्या था और इसमें छुपे हुए उद्देश्य पे जो है प्रकाश डालने की हम कोशिश करें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है मुख्य उद्देश्य और छुपे हुए उद्देश्य, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। अगर हम आगे बात करें आक्रमण का मुख्य और छिपा हुआ उद्देश्य इराक को जो है सामूहिक विनाश के हथियार यानी देखा जाए तो WMD विकसित करने से रोकना था, क्योंकि इराक देखा जाए तो इराक को जो है इराक में WMD विकसित करने की कोशिश हो रही थी, और WMD का मतलब यही होता है सामूहिक विनाश के हथियार। तो ये चीज़ों को रोकना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था USA के लिए। तो इस इराक में WMD का कोई सबूत नहीं मिला, तो यह अनुमान लगा लिया गया कि आक्रमण अन्य उद्देश्य से प्रेरित था। यानी देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पे जो जोर दिया और इस ऑपरेशन को इसलिए चलाया कि उसको लग रहा था कि इराक में जो है सामूहिक विनाश के हथियार, ठीक है, उसको विकास नहीं करना देना चाहते थे। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो इनको ये सबूत मिला कि वहाँ पर कुछ भी जो है ये एक्टिविटी नहीं मिली। तो इन्होंने अनुमान लगा लिया कि आक्रमण अन्य उद्देश्य से प्रेरित था, जिसमें इराक के तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना था, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इनका उद्देश्य बहुत साफ था कि जो इराक के तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना था। तो अमेरिका का देखिए आज के समय में यही हो रहा है, लोग कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। इनका मेनली जो इनको ये था, अमेरिका वालों को ये लग रहा था कि शायद इराक जो है कोई हथियार या WMD के रिगार्डिंग कार्यरत है, लेकिन जब उन्होंने WMD के रिगार्डिंग जो है इंक्वायरी की तो उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनको कुछ मिलना ही नहीं था जब वो एक्टिविटी थी ही नहीं। लेकिन देखा जाए फिर भी इनका उद्देश्य जो था उस क्षेत्र में जो है कब्जा करके वहाँ के तेल को जो है अपने नियंत्रण में करना, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल था। कि अनुकूल मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन जो है इराक के सारे नागरिक हो जाए और वहाँ पर जो है अमेरिका का वर्चस्व और भी बढ़ जाए। तो इन्हीं कारणों से जो था ये उद्देश्य था। यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, छुपा हुआ उद्देश्य क्या था कि वहाँ इराक के जो है तेल खजानों पर जो है कब्जा करना था, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक बहाना बनाई गई कि उनको जो है एक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि सामूहिक विनाश के लिए उन्होंने जो है हथियार रखना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा उनको सबूत नहीं मिली। फिर भी जो है वहाँ के तेलों के ऊपर उनका जो है अधिकार बनाने में सक्षम होने के लिए ये जो है ऑपरेशन चला है। अगर आगे हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दो परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणामों के ऊपर हम प्रकाश डालें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के 2 परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखता है ये क्वेश्चन। अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया। अमेरिका जो है इराक को शांत करने में असफल हो गया। कहते सरकार तेज़ी से गिर गई और इसका अमेरिका के खिलाफ एक अन्य पुण्य अभियान शुरू कर दिया। तो जर्नल सी बात है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम ये हुआ कि इसके कारण जो है सरकार बहुत तेज़ी से गिरने लगी और इराक द्वारा अमेरिका के खिलाफ पुण्य अभियान शुरू कर दिया। युद्ध में अमेरिका के देखा जाए तो 3,000 से अधिक जो है सैन्यकर्मी को खो दिया। 3,000 काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जिसका जो है सैनिक कर्मचारियों को जो है अमेरिका ने खो दिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद से यह अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर जो इराकी में जो है कम से कम 50,000 नागरिक मारे गए। तो ये भी दुखदायक परिस्थिति थी। कहते हैं युद्धों के आड़ में जो है बड़े लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं और ये जो है हर एक देश में चलता ही रहता है, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जो भी देश हो। कहते हैं कूटनीतियों में आना स्वाभाविक बना देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है।